हाँ, मैं एकलव्य की तरह हूँ। आप ही मेरी गुरु थी। शब्द ब्रह्म है, शब्द अहद है, शब्द अनहद है। शब्द का बहुत बखान हुआ यहाँ पर। एंड मैं अपने पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ आज। मुझे लगता है कि मैंने उतना अचीव ही नहीं किया जितना अन्य साथियों ने जो आज आए थे इस मंच पर। इसलिए कुछ जब मैं सेवानिवृत्त हो गई सरकार से, तो फिर मैं कुछ दिनों तक एक डिज़ाइन और एक आर्ट स्पेस में आने का मुझे मौका मिला। और बहुत सारे आर्टिस्ट की विजुअल आर्टिस्ट के जीवन से साक्षात्कार हुआ बहुत क्लोजली, क्योंकि मैंने कुछ एग्जीबिशंस क्यूरेट किए और उनके बारे में बहुत सूक्ष्मता से जाना, उनकी कला को परखा, उनकी कला दृष्टि को समझा। उनमें से एक थे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म बंगाल में कलकत्ता में हुआ। वो बड़े हुए जोरासंको ठाकुरबाड़ी में। उनके दो नेफ्यूज़ थे, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक नई परंपरा की स्थापना की आर्ट में। वो बिल्कुल एक नया राह पकड़ा जिसको बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जाना जाता है। और कवि रवींद्रनाथ, वो तो कवि थे, वो लेखक थे, वो नाटककार थे, वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो फिलोसोफर थे, वो टीचर थे। वो ज़रूर उनकी कला दृष्टि कहीं ना कहीं शुरू से ही उन्होंने कुछ आत्मसात ज़रूर किया होगा, क्योंकि वो डूडलिंग करते थे। कुछ भी लिखते थे तो उसके साथ उसके पैरेलल कुछ डूडल्स बनाते थे। But he certainly was one of the most cherished, जिसको कहते हैं रेनेसां लीडर्स, जिन्होंने इंडिया को ग्लोबल लिटरेरी मैप पे लाए। जो फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जिनको मिला 1913 में। और his artistic journey, actually very few people know, began when he was in his late 60s, 60 साल की। वैसे जैसे मैंने कहा, वो डूडल तो हमेशा ही करते थे। He did not claim his paintings and he mostly left them untitled, like Jatin Das here. He freed them in a sense from the limits of literary imagination, अनहद के extent तक, exploring the unexplored. His paintings were deeply influenced, by his experiences in theatre and as a playwright. Especially his portraiture, the animations, costumes, colors. When seen in a group, they work like wordless theatre. This was the writer, this was the poet, dramatist. As a writer, he linked human experience with emotions and essence. The same flowed into his art. His painted faces reflect a gamut of emotions. They're mysterious, they're brooding, they're melancholic. They're evocative of wonderment, of fear, of sadness, all the expressions that Sonal Appa would bring out in her dance, and Shobnadi. Drawing from a narrative, probably drawing from not a preconceived narrative, but somewhere words were an inspiration, inviting whoever was viewing those paintings to construct their own narratives. He underestimated the power of his visual art that flowed from his words. When Amrita Shergill was studying art in Paris, she first saw his paintings at an exhibition, और उन्होंने कहा कि जो शब्दों से निकला हुआ जो उनका आर्ट था, that was more powerful than even his poetry. His drawing of a क्या हुआ? I don't want to say too much here. There's a special the painting that is closest to my heart is of a bird flying. A bird not actually flying, but about to fly. And he says that this bird will not fly, it can only soar in our dreams. Such were the power of his words.
through words. I'm misquoting Eliot. I hope he forgives me. Breeding lilacs into out of the dead land, mixing memory and desire, and stirring dull roots with spring rain. That was his lovely visual imagery. With these words, I would like to end my really super short presentation. That was really, really short. That's so generous of you to leave time for. I'll go that way now, zigzag, because there are 2 ladies and 2 gentlemen. So, Raghav Chandra ji. Respected Sonal Mansingh ji, distinguished authors, writers, poets, ladies and gentlemen. आज की जब शुरुआत की गई तो जतिन दास जी ने बहुत सही तरीके से ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो साहित्यकार अब नहीं रहे। मैं उसको एक दूसरे दृष्टि से ये बोलना चाहता हूँ कि आज देश के लिए एक बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि ऑस्कार सेरेमनी में आज 2 इंडियन फिल्म्स को वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। एक RRR को, जिसको एक सॉन्ग के लिए मिला है, और एक द एलिफेंट विस्परर्स को, जिसको पर्यावरण के और कंजर्वेशन के विषय पर पुरस्कार मिला है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जिन पर ये फिल्में आधारित हैं, ये मेरे हृदय से बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि प्रशासकीय जीवन में मैंने बहुत सारे पद संभाले हैं। अधिकतर लॉ एनफोर्समेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से संबंधित रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रशासकीय हलकों में ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसे मुकाम में डाल दिया जाता है जहां लोगों को लगता है कि आपको थोड़ा पनिश कर दिया जाए, क्योंकि आपने ज़्यादा अचीव कर लिया या आप ज़्यादा सफल हो गए, तो उनको लगता है कि कुछ इनको ठंडे बस्ते में भी डाल दिया जाए। और दोनों बार जब मुझे ठंडे बस्ते में डाला गया है तो मैंने उसका सदुपयोग किया है। लेकिन इस पर मैं आने के पहले क्योंकि यहाँ पर आज की चेयरमैनशिप जो है वो आदरणीय देश की सबसे प्रतिष्ठित डांसर्स यहाँ पर मंच पर हैं, सोनल मानसिंह जी और शोभना नारायण जी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरे एक विलायत से दोस्त ने मुझसे आज प्रश्न पूछा कि नाटू नाटू का क्या मतलब है। तो मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो एक मेरी कॉमन सेंस से जो मैंने डिराइव किया कि नाट हमारी नाट्य शास्त्र से डिराइव्ड है वर्ड, और नाट्य का मतलब जैसा है वो नाटक और नृत्य दोनों का से उद्धृत है, तो इसलिए नाटक और नृत्य से नाट्य बन गया, जिसको हमारे भरत मुनि ने हमारे शास्त्रों में हजारों वर्षों से जिसका उल्लेख किया है नाट्य शास्त्र के माध्यम से, और उसी का मैं समझता हूँ कलोकियल एक रस्टिक तरीके से उसका अपभ्रंश होकर वो बन गया है नाटू और नाट। सो ये हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृति, हमारे संस्कृति के लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट का दिवस है कि हमारे नाट्य शास्त्र से आज नाटू नाटू आज वर्ल्ड फेम का एक ऑस्कर विनिंग प्राइज जीत कर आया है। तो इसके लिए बहुत बड़ी सभी को एक प्रशंसा और तालियां बजानी चाहिए। लेकिन साथ साथ कि एक इंडियन फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे टॉप मोस्ट प्राइज जीत सकती है, ये किस चीज़ का द्योतक है? ये इस चीज़ का द्योतक है कि अगर मानवीय आदर्शों, मानवीय कहानी और मानवीय उद्धरण से लेकर कोई भी रचना बनाई जाती है तो उसकी यूनिवर्सल अपील है। उसको कोई आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या इटालियन हो, वो किसी भी भाषा में हो, अगर उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो उसकी एक यूनिवर्सल अपील है, सभी को पसंद आएगी, सभी के दिलों को छू लेगी और वो सफल होगी। इसलिए literature has a very important role to play in our lives,
बिकॉज कोई भी आर्ट का फॉर्म बिना लिटरेचर के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कहते हैं कि मैथमेटिक्स के बिना कोई भी साइंस का फील्ड सफल नहीं हो सकता, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर जगह मैथ्स आ जाती है। उसी प्रकार से साहित्य लिटरेचर के बिना, शब्दों के बिना कोई भी आर्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप कितना भी नाटक लिख लें, कुछ भी लिख लें, कोई प्ले लिख लें, कोई ड्रामा लिख लें, लेकिन फिल्म बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्क्रिप्ट चाहिए, कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट चाहिए। इस बात का द्वंद्व होता रहेगा कि स्क्रिप्ट को टेक्स्ट माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो टेक्स्ट है और वो लिटरेचर है। किस फॉर्म में है, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो अलग बात है। For me, literature is an augmentation of my being. It is to be in many universes, to be in many realities at the same time. There is something magical about literature that acts like an enhancing power of a ballistic, powerful force multiplier. It enables me to be in more minds than one, to be in more levels, more planes than one, to be in others' shoes, to be in another's mind, to see through another's eyes. दूसरों के परिवेश में मैं जब लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, तो मैं एंटर कर जाता हूँ, क्योंकि एक अलग व्यक्ति की आंखों से मैं उसका जीवन देख रहा हूँ, उसके पूरे वाक़यात देख रहा हूँ, और उसको फिर मैं अपनी आइज़ में जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं उस पर जक्सटपोज जब करता हूँ, तो एक अलग एक उसका उभार निकल कर आता है। It does not matter that another may be far away geographically, with whom I may have absolutely no relationship, or that person is somebody who may not exist, but I am able to get into the minds of that character, their tragedies, their trials, their tribulations, their tensions, their dilemmas, their thrills, their expectations and joys, and to play them against my own. And that is a very happy and a very exciting phase of the entire process of reading good literature. Literature, therefore, fills a void and bridges a chasm by creating a dynamic ménage à trois, a relationship between three entities. The three entities are the author. Author ने कुछ सोचा किस तरह से लिखें, किस तरह से प्रेजेंट करें। उसने कुछ कैरेक्टर्स को बनाया, उन कैरेक्टर्स के दिमाग में उसने कुछ पिरोया, और मैंने उन दोनों को जब बैलेंस किया तो मैंने एक तीसरे एंटिटी की तरीके से मैंने देखा. सो देयर इज अ ट्रायंगल बिटवीन द ऑथर, the characters, and I myself, and that makes literature very, very exciting and interesting and dynamic, and it's constantly changing. Literature is the glue that brings disparate different people together, and yoga की बात की गई, it is the yoga that connects strangers, unites friends, and fills vacuums. It is a vehicle that helps to transcend physical and social boundaries, geographies, personal idiosyncrasies, stereotypes, and time barriers. It helps me to see, feel, and communicate beyond myself, especially when I have nowhere to go. So literature is a means of traveling when I am closeted, when I have nowhere to go. So during COVID, when I had nowhere to go, my best companion was literature, and literature took me to faraway lands, to faraway universes. I'm currently reading a book written by a scholar who's also been a member of parliament, or is perhaps a member of parliament, Swapan Das Gupta, who's written a book called Awakening Bharat Mata. अगर मैं उस किताब को नहीं पढ़ता तो मेरे दिमाग में हमेशा ये द्वंद्व रहता कि वंदे मातरम को क्यों नहीं हमारा नेशनल एंथम बनाया गया. और एज अ फील्ड एडमिनिस्ट्रेटर मैं ज़िला कलेक्टर 6-7 साल रहा हूँ, SDM रहा हूँ. हमेशा झंडे वादन जब होता था तो हमेशा ये क्वेश्चन आता था वंदे मातरम क्यों नहीं बोला जा रहा. और जबकि स्कूलों में जाता था तो कभी कभी वंदे मातरम सुनने में आता था, कभी कोई कहता था नहीं साहब वंदे मातरम नहीं. इसका पूरा इतिहास उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वर्णित किया है, किस प्रकार से ये फ्रीडम स्ट्रगल में इसका उपयोग किया गया, किस प्रकार से इसको 1896 में पहले कांग्रेस के अधिवेशन में इसको सुनाया गया. और किसने सुनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने. और किस प्रकार से धीरे धीरे से करके
प्रशासकीय तौर पर रुझान ये हुआ कि जनगण मन अलग से एक नेशनल एंथम बनाया जाए और उसके क्या कारण थे। तो ये चीज़ें जब तक इतिहास को हम जानेंगे नहीं, हम पूरी चीज़ समझ नहीं सकते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसका हम बखान नहीं कर सकते। अगर रेचल कार्सन ने ये किताब जो साइलेंट स्प्रिंग है वो नहीं लिखी होती, तो जो विश्व का जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है आज वो सफल नहीं हो पाता। रेचल कार्सन ने आज से 50 साल 60 साल पहले एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और सभी सॉइल बर्बाद हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके बाद जितने वर्ल्ड के बड़े पेस्टिसाइड कंपनीज थी, मोन्सांटो थे, तमाम ड्यूपॉन्ट थे, उन्होंने फिर पूरी अपनी थिंकिंग बदली और उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड्स से अपना धीरे धीरे करके मन हटा लिया। इसी प्रकार मुल्क राज आनंद की आज से 60-70 साल पहले लिखी हुई किताब बाखा द अनटचेबल के बारे में है। उसको अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगता है कि कितनी अधिक प्रभावशाली अनटचेबिलिटी उस ज़माने में थी, कास्ट सिस्टम था कि बाखा को बोलना पड़ता, अगर अनटचेबल को चिल्लाना पड़ता था कि वो अनटचेबल है, जिससे कि कोई अगल बगल में हो तो वो रास्ता छोड़ दे। तो ये चीज़ें जब तक हमको पता नहीं लगेंगी तब तक हमको एहसास नहीं होगा कि उसके ज़माने से हम गुजर रहे हैं। जी अब हो चुके हैं। So I just want to close by saying that 2 of my books have been related to environment and the tribal and the social sectors. One of them is Scent of a Game, जो मैंने तब लिखी जब मैं ज़िले में था और मैंने पहली बार एक व्यक्ति को, एक ब्रिगेडियर के बेटे को पकड़ा क्योंकि उसने शिकार किया था एक जानवर का। और कुछ वर्ष बाद एक वकील साहब मेरे पास किसी और मामले में आए और उन्होंने कहा, साहब आप लोग पकड़ तो लेते हो लेकिन आप लोग उसको पूरी तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। तो उस पर फिर मैंने सेंट ऑफ अ गेम लिखी जिसमें टाइगर कोचिंग की पूरा इतिहास मैंने ढूंढा है। इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, किस तरह से मनुष्य अगर एक अच्छा काम कर दे तो वो अपने को रिडीम कर सकता है। दूसरी किताब है कालीज डॉटर, विच इज़ बेस्ड ऑन अ दलित गर्ल हु इज़ इन द फॉरेन सर्विस एंड शी इज़ पोस्टेड इन जिनीवा। और ह्यूमन राइट्स कमीशन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बड़ी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बनाई है कि इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम है और उसको कहा जाता है कि आप इसका रेप्यूटेशन तैयार करिए, इसका आप प्रतिरोध तैयार करिए। और वो जब कर रही है तब उसको एहसास होता है कि उसके जीवन में उसके जो खुद संबंध थे वो किस प्रकार से कास्ट की वजह से टूट गए। तो ये मेरी कहानी है और बोलने को बहुत कुछ है, बट आप लोगों के साथ आज शरीक हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।